नो। I hope so. Class, am I audible now? Yeah, yes, ma'am. Good Yeah, okay, afternoon, okay. ma'am. Hi, good afternoon. So I have joined Yes. in from the second device. There is some problem. Okay, just give me a second. Okay, so I'll just share my screen and we will be starting with one of the important units which I left. That is unit number 6. Okay, so I'm just sharing my screen from the second device. Ma'am, your audible is not clear, ma'am. हाँ अभी हो जाएगा. I think there is some technical issue because I cannot join through my laptop इसीलिए. Just give few seconds अपने आप वो ठीक हो जाएगा.
So let me just start and I'll just see to it. Okay, there is some technical issue, but I hope something is clear to you, right? आवाज तो आ रही है ना? यस आ रही है। हाँ, ठीक है। Okay, so we are starting off with this unit. That is unit number 6, and that is again related to malnutrition. But in this, context, we will be talking about some of the major, deficiencies which are prevalent in our country and what target population is affected. Okay, so we are starting off with this thing. So first, 6.1 and 6.2 may they have again explained you that what is malnutrition. Okay, so we have discussed already this many times that malnutrition means something which is not correct, right? So technically you can define it as improper nutrition or some imbalance. Okay, so यहाँ पे they have given you the concept of undernutrition and overnutrition, because now we know that undernutrition and overnutrition both are actually forms of malnutrition only. One is because of deficiency and the other is because of excess. Okay, now in this context the third important manifestation is related to more profoundly related to deficiencies. Okay, तभी आप इस चैप्टर में देखोगे कि आपके जो ज़्यादातर टेक्स्ट है that is related to underside of the nutrition or deficiencies, and in oversight we will be only doing about overweight and obesity. Okay, the first head under this is that how does undernutrition affect your health, right? So isme they have given few examples like x-ray of two people who are well nourished and the other one is of a child who is undernourished. So they have talked in terms of that how your bones and your all over development gets affected when you are undernourished. Okay, so this is very basic one. Now the most important one is this one, that is overweight, overnutrition and obesity. Now there is a very thin line of difference between what we call as overweight and obesity. Though interchangeably in our day to day lives हम इसको कभी भी कैसे भी use कर लेते हैं ना, that she seems to be overweight or he seems to be overweight या obesity. But there is a very technical difference between these two terms, so you cannot use these two interchangeably. Okay, so both reflect underside, but overnutrition के अंदर अगर मैं overweight की बात करूं तो overweight is a step down just below your obesity, right? तो वी से कि नॉर्मल BMI होना चाहिए एंड उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओवरवेट की कैटेगरी में. सो ओवरवेट इज लाइक एन अलार्मिंग सिग्नल. अगर आप ओवरवेट से ज्यादा एक्सीड करोगे देन इट विल टर्न आउट टू बी ओबेसिटी. और अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं दैट व्हाट इज द डिफरेंस और हाउ डू यू डिफाइन ओवरवेट एंड ओबेसिटी. आप सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आइडियल बॉडी वेट. यू ऑल रिमेंबर दैट? आइडियल बॉडी वेट सबको याद है? तो आइडल बॉडी वेट से क्या मतलब होता है कि कितना होना चाहिए, राइट? एंड हमने ये पिछली क्लास में भी डिस्कस दैट दिस यू कैन फाइंड यूजिंग योर हाइट. जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट 5 फीट वाला फॉर्मूला होता है, या 100 में से रफली माइनस कर दो मेन के केस में, या यू हैव दीज LIC tables which have been shared in your manual itself. So all these are different ways by which you actually calculate IBW of a person. IBW मतलब आइडल बॉडी वेट, राइट? अब आइडल बॉडी वेट अगर आपने किसी का निकाला तो हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आइडल बॉडी वेट के आसपास ही आएगा, एंड वी ऑल विल बी इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल, राइट? कुछ ऐसे होंगे जिनका शायद आइडल बॉडी वेट से कम आ रहा है, तो वी से दैट दे विल बी पीपल हु आर अंडर वेट. ओके, बट देन वी विल हैव सम पॉपुलेशन ऑफ आवर्स हु विल बी लिटिल मोर देन व्हाट इज आइडल बॉडी वेट, और वेरी वेरी मोर देन व्हाट इज आइडल बॉडी वेट. ठीक है, अब मैं किसी का बोलती हूँ कि आइडल बॉडी वेट 55 होना चाहिए और उसका मे बी अराउंड 62, 60, 65 है, a little more. But if I say कि 55 होना चाहिए और उसका 85 या 95 है, तो rationally also you can think that this is very very excess in comparison to what it should be. So if I talk about the technical definition, इसमें 15 to 20% दे रखा है, but actually it is usually 20%. Okay, तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप अपने आइडल बॉडी वेट से, you can see this highlighted thing idle, right? तो अगर आप अपने आइडल बॉडी वेट से 10 से 20%, मैक्सिमम 20% तक एक्सेस में हो, एट दैट स्टेज यू विल बी कॉल्ड एज ओवरवेट. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आइडल बॉडी वेट से 20% एक्स्ट्रा हो देन यू विल बी क्लासिफाइड एज ओबेसिटी. ओके, अब बच्चों के केस में भी हमने देखा था दैट वी नो वी डिस्कस दैट देयर आर मेजर्स
एंड देन देयर आर इंडिकेटर्स। ठीक है, मेजर्स क्या थे जो आप बेसिक मेजर्स लेते हो एंथ्रोपोमेट्री के, लाइक आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, बट इंडिपेंडेंटली दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू मच अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस until you relate these with something else, and this something else can be age or they can be related with one another also। जैसे हमने हाइट को वेट से किया था, राइट? तो हाइट एंड वेट वो टू इंडिपेंडेंट मेजर्स जिसको हमने एक दूसरे के साथ रिलेट किया, तो हमारे पास इंडिकेटर क्या आया था? वेट फॉर हाइट। ठीक है, एंड तब हमने ये समझा था कि लो वेट फॉर हाइट इज टेक्निकली नोन एज वेस्टिंग, जो एक मैल न्यूट्रिशन को डिफाइन करने का क्राइटेरिया है ना। सिमिलरली इन केस ऑफ adults you will see that the most basic measures which you can take are again height and weight, और हाइट और वेट को यूज करके जो अडल्ट के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज BMI which stands for body mass index, and last time I gave you one example also to practice to take out BMI। ठीक है, so this is kg per meter square, right? Now this table is very very important, actually it should be by heart to you, right? अगर मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ BMI की, so obviously for okay, for all the populations it is the classification which we go is by WHO, right? And then I told you that for WHO also you will realize कि WHO का आउटर वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कट ऑफ जो है वो अलग होता है, राइट? और इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो कट ऑफ है वो अलग है, इसमें वो गिवन नहीं है शायद। ठीक है, सो यू विल बी सीइंग, यू कैन सी दैट देयर आर टू टेबल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है BMI क्लासिफिकेशन kg per meter square, because kg per meter square is the unit for BMI, okay? And then यहाँ पे you can see few numbers, and then you have two columns, you have for general population and for Asian population। Excuse me. Yeah. Why this height is given in meter square? Yeah, because weight ऊपर फॉर्मूला देखो ना, आपका जो वेट है that is in kgs and your height is in meter square। How can the height be in meter square? Only meter. It is a No, linear no, you will parameter. take, yeah, so you will be taking meters and then you need to square that to get BMI। Oh, for height square is there. हाँ हाँ हाँ, हाइट स्क्वायर इज देयर, सो दैट इज व्हाई यू हैव मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो मतलब हाइट आप अगर आपकी 157 है तो यू विल बी टेकिंग 1.57, बट यू नीड टू टेक अ स्क्वायर ऑफ दैट एंड देन you need to divide by weight। is it clear? I hope that is clear, and that is why you have unit kg per meter square। Okay, okay. Thank you. ठीक है, yeah, okay, so now you will be seeing that there are two columns to it, right? And you can see a plus mark दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, and then there is a hashtag, ओके, एंड उसका उन्होंने नीचे सोर्स दे रखा है कि ये जो प्लस मार्क है दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट वन इज फॉर जनरल पॉपुलेशन विच इज गिवन बाय WHO, right? But for Asian population you normally use a classification which is given by Mishra et al, and Mishra is Dr. Anup Mishra, okay? He is one of the leading you know endocrinologist in India, and he has done tremendous work in research and everything, right? तो उन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया है कि उन्होंने अपनी स्टडीज के थ्रू इंडियंस का डेटा लेके इंडियंस के लिए ये चीजें जो है वो डिफाइन की हैं, ओके? बट आई विल टेल यू हियर, आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो ये जो WHO वाला कॉलम है ना फॉर जनरल पॉपुलेशन, एक्चुअली में दिस इज फॉर एशियंस ऑल्सो, एशियंस के लिए भी एक अलग होता है, लेकिन यहाँ पे वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो प्लस WHO वाला गिवन है दैट इज फॉर जनरल पॉपुलेशन, एंड सेकेंड वन जहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फॉर एशियन पॉपुलेशन, you will see that this is given by Dr. Mishra। Now specifically for Indians, whenever we do some sort of research or study whatever, right, हम usually ये डॉक्टर मिश्रा की क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, राइट? बिकॉज ही इज अ पर्सन हु हैज एक्सटेंसिवली वर्क ऑन इंडियन फिनोटाइप, है ना, इंडियन के जीन्स कैसे हैं, एथनिसिटी क्या है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी क्या है। सो विद हिज नॉलेज एंड एवरीथिंग यू विल सी दैट इन 80-90% ऑफ केसेस वी यूज दिस वाला क्लासिफिकेशन, ओके? Now, for Asian classification, as we have discussed earlier, if you are underweight, it will be 18.5 kg per meter square। 18.5 से अगर आप 22.9 के बीच में आ रहे हो, that means you are normal, right? 23 to 24.9 is overweight, and obesity is defined as greater than equals to 25, okay? Which in case of WHO international you will see it is 30, right? लेकिन अगर WHO का तुम एशियन का भी क्लासिफिकेशन देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने एशियंस के लिए 25 ही डिफाइन किया है। ठीक है, ये जो आपको क्लासिफिकेशन अबव 30 की दिखाई गई है, ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट फॉर एशियन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है इन लोगों को एक कॉलम में ऐड करना चाहिए था, जिसमें यू हैव WHO की एशियन क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, एंड देन यू वुड हैव डॉक्टर मिश्रा's क्लासिफिकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लास, इट इज फाइन, और शैल आई रिपीट? तो एग्जाम में मैम अगर मैम पूछेंगे तो क्या लिखने का फिर? एशियंस के लिए तो देखो 25 से ऊपर होता है। ओके, ठीक है, एशियन का वो 25 से ऊपर होता है, और बेसिकली आप वो अगर WHO एशियन लोगे तब भी 25 के ऊपर होता है। हाँ ठीक है, और अगर आप डॉक्टर मिश्रा लोगे तब भी 25 के ऊपर यही होता है। हाँ, ठीक है, तो आपको ये जो मैम 30 के ऊपर की है ना, दिस इज एक्चुअली 30 के ऊपर इंटरनेशनल है वन। ओबेसिटी। 30 के ऊपर इंटरनेशनल है, एशियंस के लिए नहीं है। हाँ, तो व्हाट डज दैट मीन मैम? तो दैट मीन्स कि हमारे अगर हिंदुस्तान आपका में BMI 30 से ऊपर लोग नहीं है क्या? हमारे हिंदुस्तान में भी तो 30 से ऊपर है ना। मैम देयर इज कैन नॉट हियर। हाँ बताओ। सॉरी मैम, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी, आई कुडंट हियर यू। हाँ नहीं, आप बताओ, यू वर टेलिंग मी समथिंग ना। नो, आई वाज आस्किंग लाइक अबव 30 एशियन पॉपुलेशन में उन्होंने डैश डैश डाल दिया है, तो दे आर नॉट कंसीडरिंग इट। नो, बिकॉज दे से कि ये जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 दिया हुआ है ना। ठीक या है, तो डॉक्टर मिश्रा की क्लास में, डॉक्टर मिश्रा की क्लासिफिकेशन में देर आर नो सच क्लासेस। ही सेज दैट इफ यू आर अबव 25 यू आर ओबीज, राइट। तो उसमें वो क्लास नहीं है कि आप क्लास 1 ओबीज हो, या आप क्लास 2 ओबीज हो, या क्लास 3 ओबीज हो। ठीक है, इज इट क्लियर? सो उनके अकॉर्डिंगली 25 के ऊपर ओबीज मतलब ओबीज है। बट WHO states that there are classes of obesity also. So they say कि क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है, और इंटरनेशनली जो ओबेसिटी का कट ऑफ है उन्होंने वो 30 दिया हुआ है, विच इज नॉट ट्रू फॉर इंडियंस, बिकॉज यहाँ पे भी दे से कि इंडियंस के लिए अगेन इट शुड बी कितना, 25। इज दिस क्लियर? सो आपको ये याद रखना है कि 25 के ऊपर ओबेसिटी है, चाहे आप WHO गाइडलाइंस की बात करो, ठीक है, और या आप दूसरे की बात करो। Is this clear? I hope that is clear to everyone. Hmm. बताओ, clear? Okay. Now, हाँ, Ma'am, there is an underscore below the greater sign, 25. Does that mean anything? no, that means greater than equals to. तो जिनका 25 भी है वो भी obese में आएंगे। Okay, okay, thank you. Okay, so it is not greater than, मतलब if it is coming out to be 25 also ना, then also that person, मतलब 24.9 तक आप overweight हो सकते हो, अगर आपका एग्जैक्ट 25 या 25 से ज्यादा आ रहा है, so that is greater than equals to, that नीचे वाला अंडरस्कोर कन्वेन्स equals to का साइन। Yes, ma'am. ठीक है, और थर्ड कॉलम में उन्होंने उसके हिसाब से रिस्क ऑफ कोमोबिडिटी भी दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली इफ यू आर अंडरवेट यू विल हैव लो रिस्क ऑफ कोमोबिडिटी, एंड दीज कोमोबिडिटीज आर रिलेटेड टू मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी इश्यूज रिलेटेड टू बीइंग ओवरवेट, विच इज रिलेटेड टू कैंसर्स एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जैसे जैसे आप देखोगे आपका ओबेसिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, यू आर गोइंग फार फ्रॉम योर नॉर्मल बॉडी वेट और नॉर्मल रेंज, यू विल हैव एन इंक्रीज रेंज, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। इज दिस क्लियर? आप लोगों ने आजकल एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बेरियाट्रिक सर्जरी। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? बेरियाट्रिक्स, यस, है ना। तो बेरियाट्रिक्स के लिए भी ना क्राइटेरिया होता है। एवरी पर्सन कांट गो एंड से कि अगर मैं थोड़ी सी भी ओवरवेट ओबीज हूँ तो मेरी बेरियाट्रिक सर्जरी कर दो। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंसिव प्रोसीजर, एंड उसको डिफाइन करने के लिए भी जो कुछ सर्जन्स होते हैं वो ये बोलते हैं दैट इफ यू आर मॉर्बिडिडली ओबीज, मॉर्बिडिडली मतलब अगर तुम्हारा 40 के ऊपर BMI है और उसके केस में फिजिकल एक्टिविटी के नॉट बी वर्कड अपॉन, या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का भी कोई दिख नहीं रहा है सॉल्यूशंस, इन दैट केस यू कैन गो इन फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, but that has altogether different implication. Okay, now is this clear to everyone? What is that surgery? Like, what is done? बेरियाट्रिक्स में देयर इज डिफरेंट वेज, जैसे उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे एक सबसे कॉमन बेरियाट्रिक सर्जरी को अगर आप छोड़ दोगे, लिपोसक्शन भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि दे सी की फैट आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ एक्यूमुलेटेड है, राइट, एंड दे एक्चुअली सक आउट दैट फैट यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो उसमें ये होता है कि फैट को कंट्रोल करने के लिए होता है। जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है उसमें एक्चुअली देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट मोस्ट कॉमनली व्हाट दे डू इज दे कट योर स्टमक साइज,
ठीक है, स्टमक स्टेपलिंग होती है, तो वो स्टमक के साइज को ही छोटा कर देते हैं ताकि योर इनपुट विल बी लेस. Okay, but that is very very intensive. It requires lot of intensive teamwork, right? उसके बाद जैसे I had a patient of bariatric long back, and उसके अंदर I remember that we started off after surgery giving him just in some mls of liquid, because we have to see कि वो stomach stapling के बाद how this person is going to accept the food you are giving. So you start with 30 ml, 35 ml, 60 ml, and then you have to slowly rebuild the whole digestive system again. Yeah, Okay. I have one. I know one person who has gone through that. She's very Yeah. young, but Yeah. they did not consider this class 3 morbid for that, like what we देखो said. आजकल तो you are doing it for cosmetic regions also, ना? Yeah. Yeah. So that is also another thing. अगर आप किसी private उसमें जाओगे, I'm talking about very intensive, work upon, जिसमें we do undertake certain criteria before referring someone for bariatrics. It is an intensive surgery after all. ठीक है? But आजकल because of this cosmetics and other things, they undertake it. That is different issue altogether. Can you ठीक है? But mention the spelling? Can you mention the spelling? Can you write it in chat? bariatrics, yeah, I'll just Yeah, write. yeah, yeah. I'll just do that. ठीक है? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes. Just writing. ठीक है? ठीक है जी. अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज है, उन्होंने आपको एक कुछ फॉर्मूला बताया हुआ है. या ये रहा. अब देखो यहाँ पे ना देर आर मेनी डूज एंड डोंट्स. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज रिलेटेड टू दैट हाउ मच यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट द कैलोरीज इन अ पर्सन's डाइट. ओके, टू बी वेरी वेरी सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसका भाई अभी का प्रेजेंट बॉडी वेट ले लिया, राइट? उसका जो भी प्रेजेंट बॉडी वेट है आपको उससे ऑब्वियसली रेफर करना होगा आइडियल बॉडी वेट को. तो आपने निकाला कि जी इसका जो आइडियल बॉडी वेट है वो 55 होना चाहिए, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज हैविंग वेट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 80, जस्ट वेरी सुपरफिशियल एग्जाम्पल. ठीक है, तो 55 है, 80 होना चाहिए. मैंने उसका BMI निकाला और मैंने उससे बोला कि भाई आप तो ओबीस कैटेगरी में हो, सो यू नीड टू लूज डाउन दी वेट. नाउ नंबर वन थिंग रिलेटेड टू लूजिंग वेट इज व्हाट यू हैव टू मेक दिस पर्सन कैलोरी डेफिसिट. ना जैसे हमने बोला था कि कैलोरी का बैलेंस होना चाहिए. योर इनपुट शुड बी इक्विवेलेंट टू योर आउटपुट, राइट? सो इफ समवन इज कमिंग टू यू विद द प्रॉब्लम ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी, तो उसमें कॉमन सेंस यही है ना कि आपको उसको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस मोमेंट मे बी द कैलोरी कंजम्पशन इज मोर देन हिज और हर आउटपुट, राइट? तो उसके अंदर एक टेक्निक तो ये होती है ना, किसी को भी बोलते हो कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, गोइंग फॉर वॉक, योगा, वट एवर, राइट? तो उसमें भी आप क्या करते हो, यू आर बर्निंग आउट कैलोरीज. ना उसका जितना इंटेक है, उसका जितना डेपोजिशन है, यू वॉन्ट टू burn out that. Okay, so in that case you will realize that एक तरीका ये होता है कि आप अपना फिजिकल आउटपुट बढ़ाओ, तो सो दैट आपका कैलोरी का बर्निंग पार्ट, द कैलोरीज विच यू हैव एक्यूमुलेटेड कैन बी बर्नड आउट. Okay, second approach is that obviously you need to restrict the diet of this patient with respect to calorie. उसको शायद उतनी कैलोरीज के इनपुट की जरूरत नहीं है जितनी कैलोरीज आप उसको दे रहे हो. ठीक है, अब ये ना मैं ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो कि आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं. ठीक है, पीपल आर डूइंग आई डोंट नो व्हाट कोर्सेज फ्रॉम वेयर, एंड एवरीबडी इज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट दीस डेज. सबके पास ज्ञान है, राइट? बट दैट हैज टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक. यू आर प्लेइंग विद समवन्स लाइफ. ठीक है, उस बंदे को ओवरवेट ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट दैट नीड्स टू बी टैकल्ड वेरी वेरी डिजिलेंटली. ठीक है, कोई भी डाइट यहाँ वहाँ पढ़ के कि ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा. हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए वेट लूज कर लोगे, बट लेटर ऑन यू विल सी दैट यू विल हैव वेरी वेरी हाई कॉस्ट ऑफ implications. Okay, so whenever I talk about that, how much calories need to be restricted, I have seen people going on coconut diet. ठीक है, नारियल पानी की डाइट खाते हैं, पानी पूरी की डाइट खाते हैं, कैबेज डाइट होती है, एंड व्हाट ऑल नॉनसेंस दे डू. ठीक है, तो हो सकता है कि वो जिस कंपनी के साथ एफिलिएटेड है वहां पे करना जरूरी हो, दे आर वर्किंग फॉर दैट कंपनी, बट इट इज नॉट साइंटिफिक. ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बीइंग साइंटिफिक, we say that by right thumb hand rule, okay, you need to restrict the diet of a patient by 500 kilocalories. इतना ही करना चाहिए. ठीक है, हम ये बोलते हैं कि दिन में जो भी वो बंदा खा रहा है, आप उसका डाइटरी रिकॉल लोगे ऑब्वियसली कि आपका दिन का इंटेक क्या है, जो कि हमने टेक्निक डिस्कस की थी. आपने देखा कि भाई वो एट अ दिस पॉइंट ही और शी इज कंज्यूमिंग लेट्स से 1700 किलो कैलोरीज, एंड दिस विमेन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विमेन, नीड्स टू रिड्यूस वेट. ठीक है,
अब मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि आप 500 किलो कैलोरी पे आ जाओ, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू सी कि उसकी बेसिक बीएमआर, उसको कितनी बेसिक कैलोरीज की जरूरत है। एंड ड्रास्टिकली अगर आप किसी की भी कैलोरी इतनी कम कर दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट सस्टेनेबल डाइट। कोई 1 हफ्ता करेगा, 2 हफ्ता करेगा, उसके बाद बोलेगा कि नहीं हो रहा, ठीक है, और ये साइंटिफिक भी नहीं है। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल dietary guidelines say that if you want to reduce weight for anyone, right, you can maximum reduce it by reducing 500 to 1000 kilocalories in a day's diet, but 1000 kilocalories बहुत severe restriction हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि 1600 किलो कैलोरी वो भी विमेन कंज्यूम कर रही है। अब उसके केस में अगर मैं उसकी डाइट में बोलूंगी कि आपको 1000 किलो कैलोरीज रिड्यूस करना है, तो वो कितना रह जाएगा, 600-700 किलो कैलोरीज रह जाएंगी, विच इज नॉट वेरी वेरी टेक्निकल। बिकॉज यू ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो से कि किसी भी केस में 1200 से कम कैलोरीज डे में आप नहीं दे सकते हो। You are understanding? So, the minimum amount of calories, you will never go beyond 1200 kilocalories. 1000 तक भी लोग जाते हैं, पर 1000 के नीचे अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, you need to have a very very strong rationale for that. Okay? Otherwise, you usually say कि women के केस में 1200 किलो कैलोरीज और men के केस में 1400 किलो कैलोरीज के नीचे आप नहीं जाते हो। उसके नीचे जाना मतलब you need to have a very strong this on that. ठीक है? तो आप कितनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, 500 से 1000। तो यूजुअली बेटर ये रहता है कि आप 500 किलो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करो। अब इसके पीछे का फॉर्मूला जो भी इन्होंने कहानी बता रखी है वो ये बताई हुई है कि अगर आप, ठीक है, अपनी डेली डाइट से 500 किलो कैलोरी कम करोगे, whatever you are consuming, you are restricting fats, you are restricting sugar, you are restricting carbs, वो that is a different issue altogether, but you are restricting how much kilocalories, 500 किलो कैलोरी। तो अगर आप में से कोई भी 500 किलो कैलोरी अपनी डाइट में डेली बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट करेगा, that will lead to a weight loss of half a kg. So just register this thing in your mind, ठीक है। 2 मिनट सोचो कि हमने क्या पढ़ा है, and then I'll be back, ठीक है। 500 किलो कैलोरी आप रोज अगर अपनी डाइट में से रिस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है, सो दैट विल लीड टू अ वेट लॉस ऑफ half a kg in a week. Does it make sense to you all? और इसको नंबर्स को कहीं लिख लो ताकि तुम्हें याद हो। 3500 kilocalorie in a week gives half Yeah. kilo. हाफ kg, Yeah. ठीक है। और वो डेली बेसिस पे 500 होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक दिन ज्यादा खा लिया, राइट, और दूसरे दिन आप सोच रहे हो कि अब मैं और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड आउट, ठीक है। इज इट क्लियर? और अगर आप, Can you repeat? हाँ, 500 किलो कैलोरीज ऑन डेली बेसिस विल रिजल्ट इन अ वेट लॉस ऑफ हाफ kg, while 1000 किलो कैलोरीज डेली will roughly result in a weight loss of 1 kg. Is this fine? No, ma'am. It's over a period of 2 weeks, right? One See, week. यहाँ पे 2 weeks दिया हुआ है, but it is actually 1 week. Okay. ठीक है। 1 week में 500, 1 week में आप 3500 किलो कैलोरी आप डेफिशिएंट 3500 मत बोलो, आप डेली बेसिस पे 500 बोलोगे। डेली बेसिस पे 500 कर रहे हैं, तो 1 week में 1.5 हाँ, 35 हो गया, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे ये नहीं है कि एक दिन तो आपने 500 किलो कैलोरी डिफिसिट की, दूसरे दिन 200 की और तीसरे दिन 1000 कर रहे हो, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। तो हर दिन 500 किलो कैलोरी, वो मैं बोलना चाहती हूँ। तो 1 week में 500 ग्राम रिड्यूस होगा। हाँ, और टेक्निकली इतना ही होना चाहिए, ओके, ठीक है, थैंक क्योंकि यू। दैट विल लीड टू अ वेट लॉस ऑफ 1 to 2 kg इन अ मंथ ना। समझ में आ रही है बात? यस यस, क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि अगर भाई मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप मान लो 500 किलो कैलोरी डेली की डिक्रीज कर रहे हो, तो आपका हफ्ते में वेट लॉस कितना होगा, आधा किलो। तो इसके हिसाब से महीने में कितना होगा, 1 से 2 किलो ही होगा ना, ठीक है। 2 kilo. एंड यूजुअली या सो दिस इज एक्चुअली दी, और 1000 करोगे तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहती है, दैट विल बी लाइक एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरीज। एंड यूजुअली ऑल्सो वी से 2 to 3 kgs in a month is a appropriate weight loss. अब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पीपल हु से कि एक महीने में 5 किलो भी रिड्यूस करवाते हैं, 10 किलो भी कराते हैं, सो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो साइंस कहती है, जो न्यूट्रिशनल लॉज है, वो यही कहते हैं कि 500 to 1000 किलो कैलोरीज डेली, गोइंग फॉर 500, 1000 हम उनके केस में जाते हैं जिनका इंटेक बहुत हाई होता है ना, जैसे दे आर कंज्यूमिंग लाइक 2000 किलो कैलोरीज या 2500 किलो कैलोरी, तो उसमें जब आप 1000 में रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आप 1000 से नीचे नहीं जाओगे। लेकिन जिसका इंटेक ही 1600 या 1700 है, उसके केस में इट इज अकलमंदी टू गो इन बाय 500 किलो कैलोरीज।
Is this fine now? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, so this is how you work on that. Okay, then and obviously physical activity should always be accompanied with your this thing because you will have better results for that. ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि starchy food, sweets, etc. you know when you tell someone to restrict something, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक कॉमन चीज, किसी को अगर डायबिटीज निकलती है ना, तो उसको डायबिटीज से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसका मीठा बंद हो गया, राइट? अब मैं मीठा नहीं खा पाऊंगी, अब मैं शायद मैंगोज नहीं खा पाऊंगी, मैं ये भी नहीं खा पाऊंगी. तो you have to understand that whenever you are making any change in someone's lifestyle, whether it is with respect to physical activity, particularly with respect to diet, it is not easy. ठीक है, it is not easy to mend someone or change someone's habits. Okay, आप जब भी ये 500 1000 ही सुनने में बड़ा सही लगता है, 500 किलो कैलोरी तो कम करना है, जिसको कम खाना है उससे पूछो. और जब आप किसी को प्लानिंग करवाओगे, तब आप देखना कि दिस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड सेम इज द पीपल हु वांट टू पुट ऑन वेट ऑल्सो, उनके लिए वो 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा खाना भी अपने आप में मसला है. सो दैट इज वाई वी से दैट वेन एवर यू आर रेफरिंग टू दिस डेफिसिट 500 किलो कैलोरी का, प्लीज बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन योर कॉन्सेप्ट. आप पहले इन बिटवीन मील्स पे वर्कआउट करना शुरू करो. मेजर मील्स में कभी कोई इतनी दिक्कत, मतलब अगर कोई एक्सट्रीम केसेस है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू सी, पीपल यूजुअली हैव दाल रोटी सब्जी इन योर लंच एंड डिनर्स. मैं एक जो नॉर्मल इंडियन अडल्ट की बात कर रही हूँ. सम ऑफ अस हु आर इनटू कॉर्पोरेट्स और वी हैव सच सोशल लाइफ कि हम बाहर का बहुत खाते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया. अदरवाइज यू विल बी सीइंग कि हमारी जो मैक्सिमम कैलोरीज हैं वो बहुत ही ऊट पटांग चीज़ों से आती हैं. जैसे इन बिटवीन मील्स चिप्स का पैकेट खा लिया, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, सो जब आप ये 500 किलो कैलोरी का डेफिसिट कर रहे हो, यू रिस्ट्रिक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर बिकॉज दीज आर सिंपल कार्ब्स, राइट? ये आपको एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है. दीज आर एम्प्टी कैलोरीज. तभी इनको क्या बोला जाता है, फैट और शुगर को, दैट दे आर एम्प्टी कैलोरीज. दे डू नॉट प्रोवाइड यू विद एनी प्रोटीन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर कैलोरीज. जो फैट है वो फैट में से दे रहा है, जो शुगर है वो कार्ब्स की फॉर्म में दे रही है. सो दैट इज वाई स्टार्ट ऑन इन बिटवीन मील्स. उसका जो भी रिप्लेसर्स है ना, उसको स्टार्ट करो. जैसे इन बिटवीन मेरे को भूख लगती है तो भाई मैं कुछ चिप्स का पैकेट खोल के खा लेती हूँ, राइट? या रात को अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो ऑब्वियसली नींद आती है, आई नीड समथिंग टू मंच ऑन. तो आप वहाँ पे चेंजेस लाओ, वहाँ पे टेल देम टू हैव हेल्दी नट्स, ठीक है, या फ्रूट्स रख लो अपने पास, राइट? एंड रिप्लेस अदर थिंग्स विद the non the ones which are low in calories. और उसके बाद धीरे धीरे मेन डाइट्स पे आप आ सकते हो. आप पोर्शन साइजेस पे वर्क कर सकते हो. जैसे कि भैया मैं तो या मेरे यहाँ पे तो हर रोज पार्टी होती है. Between the Yeah. meals, what type of food you have to take to increase the weight? या प्लीज क्या? In between the meals, main meals, what type of food you have to take to increase the weight? फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है, आप नट्स ले सकते हो. सो डोंट गो इन फॉर दिस बिस्किट्स, कुकीज, चिप्स, रस, मट्ठीज विच वी कॉमनली कंज्यूम. ठीक है, तो उसको एक हेल्दी स्नैकिंग का Can ऑप्शन you ले सकते repeat? हो आप. There was disturbance. Can you repeat? Am I not clear to all of you? No, there was disturbance while you were saying this in between options. हाँ, तो मतलब आप कुछ भी हेल्दी ऑप्शंस लेके जा सकते हो. जैसे आपका फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, ठीक है, रादर देन गोइंग फॉर चिप्स, कुकीज या अदर फ्राइड आइटम्स. ठीक है, और आजकल Okay. फ्राइड आइटम्स में भी यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ना. आप स्टीमिंग, ग्रिलिंग करके खाओ, जहाँ पे ऑयल का ज्यादा यूज ना हो. इवन थिंग्स लाइक कबाब्स एंड टिक्कीज एक्सेट्रा, वी से डोंट डीप फ्राई देम, राइट? सो दैट्स नीड टू बी केयर Yeah. ऑफ. Yeah. Excuse me, ma'am. Yeah. Nowadays, teenagers are even studying in the night, right? So, in हाँ. night, we can provide fruit to them, or it's good to eat fruit in night? यू कैन नट्स रख लो अपने पास, फ्रूट्स रख लो, तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इफ यू आर सेइंग कि 7 बजे के बाद पल्सेस नहीं खानी और कुछ टाइम बाद फ्रूट्स नहीं खाने, तो साइंटिफिकली वी डोंट हैव एनी बेसिस फॉर दैट. ओके, Sorry, ma'am. You are not audible. There is lot of Sorry. different Yeah. disturbances. Yeah. So, मैं ना Lot of अच्छा, एक disturbance is सेकेंड, coming, ma'am. एक सेकेंड रहती हूँ, और आप लोग अपने बुक खुद खोल लेना. इज इट फाइन दिस वे? Yes. Yes, ma'am. Not. अब ठीक है, ठीक है. So this was this thing related to the type of food which you need to choose in and all that. And then when we talk about things like low in carbs, low in fat, ये हम already discuss कर चुके हैं कि low in carbs करना है, but then it is also the quality and quantity of carbs you are consuming in.
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Is this clear? Yes, ma'am. Yes. Clear, Okay. clear. Okay. So now with this, we finish off with this overweight and obesity. And next we are moving on to the other part, which is underside. So we will be doing protein, energy, malnutrition in a while. Okay. So just take a break for 5-7 minutes and then we will be continuing with protein, energy, malnutrition. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So I'm just keeping myself on mute for 5-7 minutes and then we will be continuing with PEM.
Yeah, can we start? Yes, ma'am. Okay. So, you people can just open up this manual if there is no noise. I don't know because I have joined from two devices to take them out. Okay. So the next topic which we are coming on is related to the underside of nutrition, and it's one of the most important deficiencies which are very very highly prevalent, especially in case of children in our country, is what is known as to be PEM. Okay, so PEM stands for protein energy malnutrition, and as the name suggests, obviously this is a form of malnutrition which particularly occurs in case of children. Adults में भी होता है, but इसकी जो severity है that is on very very high rates in case of children, school going children, like under 5, right? So that is why we say that this deficiency is basically due to the insufficient intake of very basic things like all over energy and particularly in context of protein. Okay, so that is why you will see that this is known as what, PEM. Okay, and कई बारी इसको प्रोटीन कैलोरी malnutrition भी बोला जाता है, PCM. ठीक है, or PCM is more subsequently related to adults, but usually you will see that in case of children, the form of malnutrition you indicate is what is known as to be PEM. Okay. अब हमें पता है कि PEM या कोई भी माल न्यूट्रिशन का ऑप्शन आपके पास होगा, तो उसमें यू विल सी दैट देयर आर क्लिनिकल फॉर्म्स एंड देयर आर सब क्लिनिकल फॉर्म्स. ठीक है, सब क्लिनिकल का क्या होता है कि जब आप ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि किस चीज की डेफिशिएंसी है, वी सी ना दैट देयर आर सर्टेन सब क्लिनिकल फॉर्म, सो दैट डेफिशिएंसी इज ऑलरेडी देयर, राइट, बट वो क्लिनिकली ब्लोन आउट नहीं है. तो यू विल ऑलवेज से कि पीएम के यू हैव क्लिनिकल फॉर्म्स एंड देन सब क्लिनिकल फॉर्म्स. सब क्लिनिकल फॉर्म्स जो होती हैं वो बच्चों के केस में हमेशा अननोटिस जाती हैं, जैसे बीइंग अंडरवेट, ठीक है, या बीइंग वेस्टेड, राइट. सो अगर किसी बच्चे का बहुत लंबे समय तक लो वेट फॉर एज जा रहा है, वो बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, सो दैट इज अ सब क्लिनिकल फॉर्म कि कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट. लेकिन जब वो फुली क्लिनिकली ब्लोन आएगा, देन यू विल रियलाइज दैट दिस चिल्ड्रन हैज गॉन इनटू दैट विशियस सर्कल ऑफ malnutrition. सो जब हम पीएम की बात करते हैं बच्चों के केस में, वी से दैट देयर आर टू फॉर्म्स. ठीक है, तो क्लिनिकली जो पीएम के केस में दो फॉर्म्स प्रीडोमिनेटली आर सीन, दैट आर नोन एज टू बी क्वॉशॉर्टर एंड मेरास्मस. ठीक है, सो प्लीज मार्क दीज टू, ये रहा. और इसमें ये एरर है, ये केमिकल फॉर्म्स नहीं है, ये क्लिनिकल फॉर्म्स है. ठीक है, तो जहाँ पे लिखा होगा ना पीएम अकर्स, ये रहा, in two distinguishable chemical forms. These are not chemical forms, these are clinical forms. ठीक है, और सब क्लिनिकल का क्या हो गया, जब बच्चा अंडरवेट है, स्टंटेड है या वेस्टेड है, तब हम बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, द चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग. सो यूजुअली यू से दैट दीज आर दी सब क्लिनिकल फॉर्म. जो भी आपने इंडिकेटर्स यूज किए उससे आपको जो भी लो in terms of nutritional status दिख रहा है. But when this goes beyond a limit, then you will see that PEM has actually occurred in this child. So वो जो PEM के दो क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं, they are marasmus and kwashiorkor. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Is this clear to everyone कि marasmus और kwashiorkor दो फॉर्म्स होते हैं? Yes, Clear? ma'am. Okay. Now then what is the difference between two? ठीक है, both are clinical forms related to PEM, right? Both में you will see that there is deficiency of all over calories and protein, right? But अगर मैं इसको differentiate करना चाहूँ, point wise point, so you will see that in case Sorry, of ma'am, marasmus, हाँ बोलिए, can you repeat that? Will you क्या, please repeat that? what I The need to repeat clinical again? or clinical and subclinical. क्लिनिकल आप याद रखो, आपके मैनुअल में केमिकल दे रखा है, उसका मतलब क्लिनिकल है, और क्लिनिकली दो फॉर्म्स होते हैं, मेरास्मस एंड क्वॉशॉर्कर. Okay, ठीक है, तो अभी okay, आप क्लिनिकल okay, याद okay. Yeah, रखो. yes. So yeah, so both are deficiency of protein and energy. But when you compare marasmus with kwashiorkor, you will see that marasmus is severe deficiency which involves both calories and protein. ठीक है, तो दोनों का इक्वल डेफिशिएंसी होता है when I talk about marasmus. I'm just writing few points in the chat box also. ठीक है, तो yeah. So marasmus में it is deficiency of both calories also and protein also. In case of kwashiorkor, you will see that that is more of a protein deficiency.
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एज ग्रुप क्या होता है, तो हम यूजुअली बोलते हैं कि दोनों, चाहे वो मरासमस है, चाहे वो क्वाशॉर्टर है, बोथ आर प्रेजेंट चिल्ड्रन, बट यू विल रियलाइज कि जो मरासमस है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यू विल रियलाइज कि जो मरासमस है दैट इज इन इन्फेंट्स। ओके, इन्फेंट्स ज्यादा छोटे बच्चे हो गए ना, एंड देन अंडर 5। ओके, so you will see that marasmus is more commonly observed इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, जिनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद जो फॉर्म ऑफ क्लिनिकल डेफिशिएंसी आप देखते हो क्वाशॉर्टर की फॉर्म में, दैट इज फॉर अ लिटिल ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट वेरी ओल्ड चिल्ड्रन, बट दे आर यूजुअली मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। सो बिटवीन 1 to 3-4 years जो आप पीईएन का डेफिशिएंसी स्पेक्ट्रम देखते हो, दैट वी कॉल एज क्वाशॉर्टर। Now, why this happens is because if you look at kwashiorkor, right? So kwashiorkor is referred to as a African terminology, जिसमें we say that this is a disease of a first displaced child. Okay? अगर आप इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखोगे, so we say that kwashiorkor is actually a disease which is of a displaced child, first child, because what happens is कि जहाँ पे birth spacing कम होती है, ठीक है, वहाँ पे आप ये देखोगे that a new child is born and mother suddenly displaces the child of breast. तो breast milk का intake या बाकी सब चीजों का intake कम हो जाता है because the new child take that place, right? So that is why we say that kwashiorkor is a disease of an older child when a new comes in, right? So that is a disease of a displaced child. तभी आप देखोगे जो क्वाशॉर्टर है वो 1 साल के बाद उसका स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है, और अगर वो बच्चे 1 साल से कम के हैं तो उनके केस में जो फॉर्म ऑफ पीएन रहता है वो कौन सा रहता है? मरासमस। इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन? यस मैम। तो हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मतलब कंटिन्यू। मदर की नेग्लिजेंस है? मदर की नेग्लिजेंस जानबूझ के नहीं होती है बहुत से केसेस में, बट इट इज अ ट्रूथ ना, अगर आप बर्थ स्पेसिंग कम रख रहे हो। आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में अगेन इट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। सी Madam, फॉर can एवरी you रीजन। repeat that? व्हाट? Kwashiorkor. मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स में, देखो। क्वाशॉर्कर ट्रांसलेट्स टू डिजीज ऑफ अ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। कैन यू सी दैट? ठीक है, so usually if you compare kwashiorkor and marasmus, you will see that in case of marasmus, marasmus is for younger children up till the age of 1 year, and kwashiorkor is for little older children, like 1 year से 2-3 साल तक चलता है। Is this clear now? Okay. Now the other differences between two is you will notice that in case of kwashiorkor, ये आप pointers please लिख लो। ठीक है, इन केस ऑफ क्वाशॉर्कर द क्लिनिकल साइन जो डिस्टिंग्विश करता है क्वाशॉर्कर को मरासमस से, दैट इज व्हाट? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अडीमा, OEDMA। यू नो व्हाट इज अडीमा? रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। तो अडीमा क्या होता है? अडीमा इज related to retention of fluid in the body. So you will see that when you compare kwashiorkor with marasmus, kwashiorkor में हमेशा there is edema. Edema का क्या मतलब है? That child has fluid in the body, retention of fluid in the body. तो you will see that most of the children जब आप इनको देखोगे, ये देखने में बहुत चबी लगते हैं, right? But that chubbiness or that fluffiness is not because of good nutritional status. That is because of retention of the fluid. So you will see that swelling in case of hands, feet, ठीक है, particularly extremities, and also on the face, ठीक है। So क्वाशॉर्कर के अंदर there is always presence of edema. मरासमस में edema नहीं होता है। मरासमस में it is all skin and bone, ठीक है। तो अगर आप मरासमस की बात करोगे तो you will realize that the child is all skin and bone। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ skin and bone in case of a marasmic child, ठीक है। और क्वाशॉर्कर में क्या हो रहा है? क्वाशॉर्कर में there is actually presence of edema, ठीक है। That is why you will see that in case of क्वाशॉर्कर child, जो एक distinguishing feature होता है because of presence of edema, that is moon face। स्वेलिंग होती है ना चेहरे पे, ठीक है।
तो इसलिए वो क्या चेहरा रिजेंबल करता है, मून फेस, सर्कुलर फेस, but that circular face is due to retention of fluid. While in case of marasmus you will see that there are no traces of fat. The child is all skin and bone. आपको हड्डी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई सबक्यूटेनियस फैट बॉडी में होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज सीवियर deficiency of both protein and calories, ठीक है, and because that is all haddi, there is no fat in case of child, there is no edema, there is no retention of fluid, so you will see that the child resembles old man. जैसे जब आप बूढ़े होते हो तो फेस पे रिंकलिंग हो जाती है ना, जब बॉडी का फैट खत्म होने लग जाता है, तो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ marasmus we say that it is old man face. यहाँ पे आई एम राइटिंग marasmus में it is old man face और monkey face. अगर आप गूगल करोगे ना, you will find many pics which actually show the differences between these two. Okay, so always remember kwashiorkor और marasmus में क्या difference है. Kwashiorkor is for little older children. Marasmus is related to infancy under 1 year. तो इसीलिए इसका जो कॉज क्या होगा कि अगर इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं किया है, पुअर डाइटरी इंटेक ऑफ द चाइल्ड. क्वाशियोर्कर में a year older child up till the age of 2 to 3 years, but in that case you will see that there is presence of edema. Now presence of edema makes the things related to swelling of feet, face, etc., and therefore a child will resemble a moon face. In case of marasmus, because there is very severe emaciation, ठीक है, बच्चे का सिर्फ हड्डियों के ढांचे के अलावा you can actually see the ribs of the child and count them, right? So in that case, you will see that the child is all skin and bone, and because of this excessive wrinkling, you will see that the child resembles a monkey face or a old man face. Is this clear to everyone now? Are the differences clear? Yes. ठीक है, okay. Now ये क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपको याद होगा ये इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है. सो यू विल सी दैट, और ये देखो ये रहा, ये डिफरेंसेस जो है वो इन्होंने इस फोटो में दिखाए हुए हैं, बट दैट फोटोग्राफ इज ऑब्वियसली नॉट वेरी नेचुरल वन, सो नॉट वेरी क्लियर वन, ठीक है, बट यू विल सी. एंड इस पैराग्राफ में दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वाज टेलिंग यू, राइट, सब क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ पीएम सच एज अंडरवेट, स्टंटिंग, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो मैल न्यूट्रिशन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को कैटेगराइज करने के लिए. और क्लिनिकल फॉर्म्स आपकी कौन सी हो गई, क्वाशियोर्कर, और दूसरी आपकी कौन सी हो गई, marasmus, ठीक है. So you will see yellow. The kwashiorkor means the disease of the first child when the second one is born. Okay, and that is why it is known as displaced child. Okay, obviously because of things which we talked about, the mother का negligence हो गया, या she is starting to feed new baby and things like that. Okay, so that is why you will see कि kwashiorkor normally sets in around 2 years of age. Infancy जो है वो छोटे बच्चों में होता है. Edema ये रहा आपका, ठीक है. So you will see that the child does not look thin, right? There is water retention, and this is what is known as to the edema. Okay. So अब दूसरी चीज इसमें ये होती है कि अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ है कि पीएम का एक साइन एंड सिम्टम पर्टिकुलरली इन क्वाशियोर्कर होता है. आपके बच्चे के जो बालों का रंग होता है ना, वो क्यूपरिश रेड हो जाता है, so because they start to lose their sheen, they start to get discolored, right? So there is a very prominent patching which occurs, ठीक है, जिसको हम फ्लैट साइन हेयर कहते हैं, जिसमें नहीं गिवन है, ठीक है. या यू विल सी दैट द कलर ऑफ द स्किन सडनली स्लोली बिकम्स वेरी वेरी क्यूपरिश रेड टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं. सो दीज आर सर्टेन हेयर चेंजेस एंड अदर थिंग, बट द मेजर डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इन टर्म्स ऑफ edema, moon face, monkey face and patching. Okay, now you can see these three indicators. लो वेट फॉर एज को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिखो. लो वेट फॉर एज को क्या कहते हैं, एनीवन? Wasting. नो, लो वेट फॉर एज क्या कहते हैं. नीचे देखो यहाँ पे गिवन भी है, क्या है, अंडरवेट, ठीक है. Under. सिमिलरली लो हाइट फॉर एज इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टंटिंग, राइट, and low weight for height is indicative of wasting. तो if you remember, हमने ये तीनों के तीनों जो indicators हैं, ये तब किए थे जब हमने बच्चों के growth standards को पढ़ना था, right? And that time I showed you a growth chart. So basically ये वो growth chart की interpretation, ठीक है. And I'll tell you one. I'm sharing my screen for weight for age girls वाला chart, ठीक है. Just give me a second.
Yeah, you can see this one. सबको दिख रहा है ये वाला फ्लो चार्ट? ठीक है, Yes, इसमें ma'am. अगर आपको याद था तो आई टोल्ड यू ना कि ये जो जीरो है दिस इज एक्चुअली द रेफरेंस लाइन, ठीक है, और 2 और 3 पॉजिटिव नंबर्स में डिपिक्ट करते हैं कि ओवर साइड ऑफ न्यूट्रिशन या पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव, मतलब इस रेफरेंस लाइन से बच्चा कितना डिविएट कर रहा है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये बच्चे का, ये तब मैंने किया भी था जब आपको ग्रोथ कर्व समझाया था, कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है या यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? ठीक है, सो ये जो आपका टेबल गिवन है ना यूनिट नंबर 6 में, टेबल 6.2, आप साथ साथ खोलो बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग, आई कैन प्रेजेंट ओनली वन स्क्रीन, ठीक है। तो यू विल सी दैट दे हैव गिवन क्लासिफिकेशन, कि अगर मीडियन से -2 से ऊपर है तो वो नॉर्मल है, अगर देखो -3 से नीचे है तो वो सीवियर अंडरवेट है, -2 से -3 के बीच में है तो वो मॉडरेट अंडरवेट है, ठीक है। तो जैसे सपोजिंगली आपने ये बच्चे का मार्क यहाँ पे किया कहीं पे, ये सॉरी इधर -2 से -3 के बीच में, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ये इसके बीच में आया, -2 से -3 के बीच में कहीं पे भी आ रहा है, सो उसके हिसाब से आप क्विकली देख के बता सकते हो दैट दिस गर्ल इज मॉडरेटली अंडरवेट। पर अगर किसी भी गर्ल के लिए ये -3 से नीचे जा रहा है, ये ब्लैक लाइन से नीचे जा रहा है, दैट इज डिपिक्टिव ऑफ व्हाट, सीवियर अंडरवेट, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक ग्रोथ चार्ट के लिए यू हैव द क्लासिफिकेशन व्हिच हैज बीन given to you, ये वाली, दिस वन, ठीक है। तो यू विल सी कि आप ऐसे वेट फॉर एज का चार्ट निकाल लो, हाइट फॉर एज का निकाल लो, वेट फॉर हाइट का निकालो, और ऑब्वियसली ये बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है। वहां जाके आप ग्रोथ प्लॉट मार्क कर दो कि ये महीना इतना हाइट है, इतना वेट है, जो भी आप इंडिकेटर ले रहे हो, एंड देन यू सी कि वो लाइन के हिसाब से वो जो ग्रोथ प्लॉट है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली यू विल सी कि अगर ये वेट फॉर एज का चार्ट नहीं होता और हाइट फॉर एज का होता, और उसमें भी अगर ये -3 से नीचे होता, तो दैट मीन्स द चाइल्ड वुड हैव बीन सीवियरली स्टंटेड। अगर आप वेस्टिंग देख रहे होते वेट फॉर हाइट के हिसाब से, तो द चाइल्ड वुड हैव बीन सीवियरली वेस्टेड, ओके। So this is basically the reference table or the interpretation table for your growth charts. So is this clear to everyone how you do it? Is this fine? Any questions in this? हाँ या ना? Not really, ma'am. Not clear, Okay. ma'am. Like we don't have that chart, so we are supposed to make that chart No, in but this वही book. बात है ना कि इसमें इन्होंने आपको चार्ट नहीं दिए हैं, चार्ट इन्होंने आपको वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के चैप्टर में दिया था, इफ यू रिमेम्बर वेट फॉर एज का, हाँ यू रिमेम्बर वेट फॉर एज का चार्ट गिवन है ना, तो उसकी हाँ इंटरप्रिटेशन इन्होंने यहाँ पे दी है, okay. ठीक है। तो ऐसे ही अब खाली वेट फॉर एज तो नहीं है ना, बॉयज गर्ल्स का अलग है, हाइट फॉर एज भी है, वेट फॉर हाइट भी है, तो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना दिया फॉर एवरी इंडिकेटर, सो यू मैम डोंट नीड आप टू लर्न दैट। नॉर्मल लाइफ में जब कोई आप अपना आते हैं क्लिनिक में, तो डू यू यूज दैट WHO चार्ट? यस यू हैव टू, अदरवाइज आप कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करोगे? ओके, सो इट्स बेसिकली अगर मैंने प्लॉट कर लिया, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आप मतलब यूज होना चाहिए। ओके, क्लियर है। एवरीवन यूजेस दैट। अगर आप कोई भी स्टडी की बात करते हो, बिकॉज यू नो इफ अ मदर कम्स टू मी, राइट, हम्म, मैंने उसका ग्रोथ प्लॉट कर लिया, अब मुझे पता है ये -3 से नीचे आ रहा है, हम्म, तो फिर वो -3 से नीचे आने का क्या मतलब है? या शी है हैज ना, एन तो इशू। बेसिकली दिस इज द इंटरप्रिटेशन। Underweight. हाँ, और अंडरवेट है या सीवियरली अंडरवेट है, अगर -2 से -3 के बीच में है तो आप मॉडरेटली अंडरवेट हो, पर अगर वो बच्चा -3 से भी नीचे है, दैट मींस सम नीड्स टू बी डन बिकॉज़ दैट इज सीवियर फॉर्म ऑफ अंडरन्यूट्रिशन, Hmm. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद पीएन के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग which is related to your vitamin A deficiency. So I'll just I think close my मैम this browser and ये आप जो प्लीज अपना ये विटामिन मैनुअल खोलिए। ए डेफिशिएंसी में जो चार्ट जो भी पिक्चर है वो बहुत क्लियर नहीं है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो आई। या ओके, even that is not clear. Yeah, so that is idea trying to show. Okay. Okay. So now we are moving on to the next deficiency, which is vitamin E deficiency. Now, though we have sort of,
have control over this issue. Vitamin A deficiency was very, very highly prevalent, particularly in case of school-going children. तो with this vitamin A dosage program, ठीक है, vitamin A का prophylaxis program हमारी कंट्री में बहुत profoundly and strongly चल रहा है, जिसकी वजह से you will see that there is decline in these cases. But still, when you compare our, prevalence rate of vitamin A deficiency with rest of the world, we really need to do something more better. Okay, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बहुत फर्क आ गया है, but still, we need to go a long way. Now, vitamin A, always remember that vitamin A plays a very, very important role in your visual cycle. जो आपकी विजन होती है, तो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई इम्पेयरमेंट्स, वो अलग होता है, ठीक है. लेकिन हाँ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से समटाइम्स देयर आर इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू आई, ठीक है, एंड देयर आर स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस व्हिच इफेक्ट योर आई. ओके, तो उसके केसेस में यू विल सी दैट दे आर, ठीक है, यहाँ से. So they have given you different forms of vitamin A deficiency or different stages in vitamin A deficiency. So usually we say that the first initial stage is night blindness, right? Which you will see that in majority of kids get unnoticed because parents are not very vigilant, they are not very aware regarding this deficiency. तो आप जो first sign and symptom देखते हो, तो उसमें ये हुआ कि जब आप अंधेरे में एकदम से जा रहे हो, so you have the child has inability to quickly adapt to that surrounding. या उसको अंधेरे में थोड़ा कम दिख रहा है, right, because of this adjustment. So that is why we say that night blindness though is one of the initial stages of vitamin D deficiency, but in the most of the cases you will find that this go unnoticed. Okay, so if you feel that the child is not able to do his or homework in the night, उसको बाहर खेलने में जाने में परेशानी होती है, तो these are small signs and symptoms which needs to be catered to. Now what happens is that the other, if this deficiency progresses further, then it take more form of a clinical manifestation जहाँ पे you will be seeing changes in the eye, right? So उसमें जो first होता है that is known as Bitot spot. Okay, so Bitot spot you will be seeing that generally you will be having this white foam type of spots which appear basically on the white portion of your skin. ठीक है, तो white portion is related to your conjunctiva and your black portion is cornea. ठीक है, तो वो जो आपका white portion of eye होता है उस पे आप देखोगे that there are these foamy patches which appear. ठीक है, so that these are known as Bitot spot. अब उसके बाद भी अगर डेफिशिएंसी हाई हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, देन एक्चुअली इट कैन कॉज ड्राइनेस. ज़िरोसिस टर्म देख रहे हो, ठीक है, सो ज़िरोसिस इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू ड्राइनेस. ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कंजंक्टिवल ज़िरोसिस, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, मतलब आपका जो वाइट पोर्शन ऑफ आई है दैट इज रिलेटेड टू ड्राइनेस. ठीक है, तो वो हो गया कंजंक्टिवल ज़िरोसिस. दूसरा देखो क्या आ गया, कॉर्नियल. तो ज़िरोसिस का मतलब तो ड्राइनेस है ना, तो कॉर्नियल का क्या मतलब हो गया, कॉर्निया. द ब्लैक पोर्शन ऑफ योर आई स्टार्ट्स टू गेट अफेक्टेड एंड in the final stage you will be seeing that there is complete destruction of cornea. Now the cornea has been fully and completely damaged and this type of night blindness cannot be reverted. ठीक है, तो कुछ स्टेज तक इवन ये तुम्हारा जो कॉर्नियल cirrhosis है, यहाँ तक भी say that if you put in an effort, vitamin A, whatever medications you want to do, तब तक तो वो ठीक रिवर्स बैक हो सकता है. लेकिन उसके बाद जब ये अल्सरेशन की स्टेज पर आ गया और अल्सरेशन के बाद योर केरेटोमेलेशिया, जो आपका जो ब्लैक पोर्शन ऑफ आई है, that has been damaged. In that case, it is very difficult to revert back and that will lead to complete blindness which is irreversible in nature. तो हमारे केसेस में, हमारे इंडिया में जितने भी आप ब्लाइंडनेस के केसेस देखोगे उसमें से बहुत हाई प्रोपोर्शन है which is in the form of keratomelastia. Now, why is this issue of vitamin A deficiency? We know that vitamin A is required for healthy skin and moreover, your vision, which is very, very important. Now, the masala with vitamin A is that vitamin A comes from two forms. You have retinol and then you have beta carotene. Here we need to understand that the active form of vitamin A is retinol. ठीक है, तो आपका जो आपकी बॉडी जो विटामिन ए एब्जॉर्ब करती है वो हमेशा रेटिनॉल की फॉर्म में करती है, ना कि बीटा कैरोटीन की फॉर्म में. और रेटिनॉल होता है आपका एनिमल प्रोडक्ट्स में. सो अगेन मिल्क एंड मीट ग्रुप दैट इज केटरिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेटिनॉल, जिसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा एफिशिएंटली होता है इन कंपैरिजन टू योर वेजिटेरियन सोर्सेज. तो हम वो जो बोलते हैं ना येलो कलर, green color vegetables etc which are very, very rich in vitamin A. So what form of vitamin A? Beta carotene, carotenoids. ठीक है,
तो कैरोटीनॉइड्स भी अल्फा बीटा गामा बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से प्रीडोमिनेटली जो सबसे डाइटरी एफिशिएंट यूज होता है दैट इज बीटा कैरोटीन, राइट? सो बीटा कैरोटीन इज आल्सो a form of vitamin A, but that is a precursor. Okay, always remember that beta carotene is a precursor of vitamin A. ठीक है, और रेटिनॉल जो है वो क्या होता है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर टू फॉर्म्स, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन, बोथ गिव यू विटामिन ए. एक्टिव फॉर्म इज व्हाट, रेटिनॉल. बीटा कैरोटीन भी एक फॉर्म है, बट दैट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, राइट? अब आपकी बॉडी में जो सेल्स, सिंपलेस्ट टर्म में अगर मैं बोलूँ, या आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो विटामिन ए को रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ रेटिनॉल में. ठीक है, तो अगर आपने एग खाया, मिल्क पिया, मिल्क प्रोडक्ट कोई भी खाया, आप कौन सा फॉर्म ले रहे हो विटामिन ए का, रेटिनॉल. आपकी बॉडी भी विटामिन ए को किसमें रिकॉग्नाइज करती है, रेटिनॉल में. सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ना. ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म में खा रहे हो, बॉडी भी रेटिनॉल की फॉर्म में ही उसको एक्सेप्ट करेगी. सो दैट इज वेरी इजी. ठीक है, रेटिनॉल खाया और रेटिनॉल भी एब्जॉर्ब हुआ. इज दिस फाइन टिल हियर? इज दिस क्लियर अप हियर? Yes. Yes. ठीक है, मैम एक वो भी था ना 1/6 कुछ खाना पड़ता है 6 मैं बता रही टाइम्स. हूँ, वो Yeah. बीटा कैरोटीन है. ठीक है, बट द अदर थिंग इज दैट इफ you are consuming palak and now you have consumed what, you have consumed vitamin A का form only, but that is in form of what, that is in form of beta carotene. अब आपकी बॉडी किसको रिकॉग्नाइज करती है, रेटिनॉल को. खाया आपने क्या है, बीटा कैरोटीन. अब यहाँ पे फिर मसला हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी को तो ये लगता है कि भाई ये तो रेटिनॉल नहीं है, इट इज जजिंग दैट टू बी समथिंग एल्स. But the good part is what, that your beta carotene can be converted to vitamin A. So that is why it is known as precursor. Precursor समझते हो, enzymes और ये सब में हम बात करते हैं, anything which can be converted into more active form. ठीक है, इसलिए beta carotene is a precursor of vitamin A. You can convert this beta carotene in the active form, which is retinol. Okay, but if something needs to be converted into active form, that means it needs to be converted in some manner, right? अब उसके केस में वो क्या होता है कि we say that the proportion of vitamin A in form of beta carotene which is converted to that is only 1/6. Is this clear? Is this fine? Can So you वो please कितना, repeat, ma'am? yeah, that is 1/6. And I'll not just switch off from this device because इसके बाद you can open up your books. Okay, I'm not sharing the screen. Just give me a second. Yeah. So that is what, that is actually the 1/6 which gets converted into retinol. 1/6, 1/6. Is this fine? इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ, मैं बता देती हूँ. मैम तो बीटा आप कैरोटीन सोचो, का अपना भी कोई रोल है, लाइक 1/6 विटामिन ए में चला गया, कन्वर्ट हो गया, एंड बैलेंस इज वेस्ट. no, it's not waste. That is the convertibility factor ना. तो वो होता ही उतना है. तो मतलब अगर आप मान लो 600 माइक्रोग्राम्स ऑफ बीटा कैरोटीन खा रहे हो, जैसे अब आप करेंसी है, आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो ना, या तो देयर इज नथिंग वेस्ट और लाइक दैट ना. अब वो करेंसी का यूनिट ही वही है कि $1 इज इक्वल टू व्हाटएवर रुपीस. ठीक है, तो वो तो कन्वर्जन कॉस्ट ही आ गया ना. बहुत कम हुआ यानी. ओके, बहुत कम हुआ. सो दैट इज व्हाई वी से दैट यस यू हैव विटामिन ए इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रोपोर्शन आवर बॉडी कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज दैट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि तुमने 100 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल खाया, ठीक है, मान लो आपने दूध पिया, पनीर खाया, व्हाटएवर, तो वो 100 का 100 में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है ना. सो दैट विल बी बेटर यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी. बट इफ यू आर कंज्यूमिंग बीटा कैरोटीन, तो अगर आपने वो 100 खाया होगा तो 100 को ओनली 1/6, ठीक है, 16, अराउंड 10 17, 1/6. सो दैट विल बी गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी. ठीक है, so that is the basic reason why we have high prevalence rate of vitamin A. एंड बच्चों बच्चों के केस में ना वैसे भी वी हैव डिस्कस कि हमारा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन बहुत पुअर है. तो इनटेक इन टर्म्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स गेट वेरी वेरी लोअर डाउन.
एंड देन दैट इनटेक इज डिपेंडेंट ऑन सीजन्स आल्सो, राइट? अगर आप विंटर्स की बात करोगे, आप हरी सब्जियां खा सकते हो, लेकिन आप समर्स की बात करोगे तो उसकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है। Okay, and then because of this thing, we also have a program, vitamin A profile access program, जिसके अंदर you will see that most of the children, they do receive vitamin A का dosage. ठीक है, so that is blended with oil because vitamin A is a fat soluble vitamin. तो वो vitamin A को oil blended देते हैं so that it can help in increasing that whatever dose you are giving of vitamin A. So dosage का आपको given होगा हर 6 महीने में, that is 1 lakh international units that needs to be given to the child. And usually ये जो हर 6 महीने में आप देते हो ना, that coincides with the immunization schedule of the child also. So जब बच्चा वो immunization के लिए आता है, उसके साथ ही उसको ये vitamin A की dosage दे दी जाती है, ठीक है? बट ऑब्वियसली दी अदर थिंग्स एंड दिस इज मैंडेटरी, आप जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स ICDS का पार्ट देखोगे, दैट टीम इज वर्किंग ऑन साइड बाय साइड, ओके? Then the other important things are related to fact that अगर mother is giving child a breast milk, right? अब उसका अपना nutritional status poor था, तो maybe that breast milk will be low in vitamin A, and for first 6 months the child has to be totally dependent on this, ठीक है? तो mother का malnutrition plays an important role. अगर आपने कोलेस्ट्रॉम फीड नहीं कराया, because कोलेस्ट्रॉम also has very high quantities of vitamin A, and vitamin A is something, these are fat soluble vitamins and these can be stored in your body. फैट soluble है ना, तो A, D, E के स्टोर्स होते हैं आपकी बॉडी में, यू विल बी एबल टू स्टोर लिटिल एक्स्ट्रा आल्सो, राइट, एज अ प्रोविजन. बट इफ योर डाइटरी इनटेक इज लो, breast milk quality is low, then all these are things which can lead to vitamin A deficiency. Certain infections, जैसे जब measles होता है, right? तो measles या pox type के infections में भी से कि vitamin A का deficiency हो जाती है because आपकी intestine gets affected, और intestine is a unit for absorption. So in certain infections you will see, because intestine is affected, so your intestine cannot efficiently absorb vitamin A. So these are certain infections जिसके अंदर you will be seeing that vitamin A deficiency becomes a problem. Is this clear? Okay, so this Ma'am, was can you related please to go your slow because your voice is also not clear and you're going fast. So can't क्या repeat करना है बताओ? please go Repeat क्या slow. करना है बताओ? Vitamin A की deficiency तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको. Vitamin A के दो फॉर्म्स आपको पता है कि रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है? Retinol is the active form. Beta carotene needs to be converted to retinol. Conversion factor is 1/6. ठीक है? प्रॉब्लम्स क्या है? अगर आपने कोलेस्ट्रॉल फीड नहीं किया, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हैज हाई डोजेज ऑफ विटामिन ए. अगर ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी विटामिन ए में लो है, या आपका डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन पुअर है, सो फॉर दिस यू आल्सो हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे विटामिन ए के डोजेज जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है? और वो डोजेज हर 6 मंथ्स में बच्चे के लिए मैंडेटरी होता है अप टिल द एज ऑफ 5-6 ईयर्स, ठीक है? तो वो हर 6 महीने पे आपको डोजेज देना पड़ता है. और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मीजल्स या ऑन, जहाँ पे आपकी इंटेस्टाइन की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन ए डिक्रीजेस, so that is why you will have to put an extra effort जहाँ पे the absorption related issues are there with vitamin A. Is this clear now? मैम 1 लाख वाला जो इंजेक्शन बोल रहे थे वो कब तक एज तक बच्चों को देना है? आई डिडंट हियर इंजेक्शन इट. नहीं होता, that is orally, that is orally, ओरल that is not कितना an एज तक injection. देना रहता है मैम? हाँ, Till what age they are given? The kids are given मैंने बोला है ना, फ्रॉम 6 months to 6 years, हर 5-6 महीने 6 में देते years. हैं. हाँ, वो 6 years क्लियर नहीं था. थैंक यू. और कुछ? You will have this schedule in your manuals also, you can see that. Anything else in vitamin A? Ma'am, one small question, ये जो आजकल so good या whatever companies they are claiming to put all these vitamins in it, so they are supposed to be healthy or no? See the same funda which we discussed regarding supplementation, ठीक है? Because अगर आप डाइट के थ्रू कर सकते हो, जो यूजुअली 5 साल तक इंजेक्शन चलते हैं, नॉट इवन 6 years, 6 months to 5 years तक चलते हैं. तो अगर आप कोई भी चीज डाइट के थ्रू खा रहे हो, that is well and good, but in certain cases again when it is not possible, उसके केस में हो सकता है कि आपको कभी you have to be dependent on these supplements also. But then it also depends that what stage of deficiency you are in.
जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी है बच्चे को, उसके केस में अगर आप डाइट में इंट्रोड्यूस भी करते हो विटामिन ए रिच फूड, इट विल टेक टाइम। ठीक है, so तब तक you also have to see the severity that you can wait till there, or you can put on this child to certain supplementation या vitamin A supplements, and then slowly and steadily you can come over to the diet. So you have to decide. Okay, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना या बिल्कुल देना है. It is all individualistic and that depends on some other factors also. No, ma'am, someone who is not taking dairy milk, वो vegan है, तो वो जो आजकल almond milk या soya milk आ रहा है, and they claim it to fill it up with vitamins and minerals. So also So you recommended. can, but that is recommended. मतलब अगर आप नहीं ले रहे हो, आप restrict कर रहे हो, so you can go in for that option, right? And they But really nobody take care recommends of. you कि आप वो मत खाओ और ये कर लो. No, I was trying to know if they really take care of your needed vitamin A dose. That you have, no, सब तो उसमें से नहीं आएगा ना. You will have to see कि आप बाकी सब डाइट में क्या खा रहे हो. हाँ जी, वो भी है. ठीक है, ठीक ma'am. है, Thank so you. you have to see. Yeah, but obviously if you're restricting one full food group, then you have to be little apprehensive about other sources also. Excuse me, Yeah, ma'am. so हाँ. मैम जी. अभी चाइल्ड को टिल द एज ऑफ 6 years अगर देते हैं, 5 बट years, इवन इफ 5 ही years, 5 years. अच्छा 5 years, तो इवन इफ 6 ही इज months to 5 और द years. चाइल्ड इज गुड न्यूट्रिशनली वेल, तो भी देना है. ये actually में this is a preventive measure. You understand prevention? ठीक है, so हाँ, this यस scheme मैम. is a part of a prevention. अगर किसी बच्चे को फिर भी डायग्नोस होता है विटामिन डेफिशिएंसी, तो उसके केस में वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की भी डोज देते हैं. यू अंडरस्टैंड प्रिवेंशन? तो प्रिवेंशन का मतलब है कि ना हो, तो वो सेफ्टी मार्जिन के लिए वी आर गिविंग दिस. कि बाकी ओके, सब चीजें थैंक ठीक यू. है, वो राइट से भी ले रहा तो ठीक है, बट दिस विल एक्ट एज अ प्रिवेंटिव कुशन या प्रोटेक्टिव कुशन फॉर द चाइल्ड. ओके, थैंक यू. एनीथिंग एल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ यहाँ पे विटामिन कॉड लिवर डेफिशिएंसी? ऑयल भी मैम लिखा है ना, कॉड लिवर ऑयल भी लिखा है. हाँ हाँ, वो तो सोर्सेज में गिवन है ना. तो whatever source you are comfortable with for vitamin A, you can just take in that. Cod liver oil ओके इसलिए भी होता ओके. है because actually आपका जो liver है that stores vitamin A ना, ओहो, यस यस. उस कॉन्टेक्स्ट से. ओके, और कुछ? ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. आज ओवर न्यूट्रिशन में हमने ओबेसिटी एंड ओवरवेट किया है, एंड डेफिशिएंसी में वी डिड PEN which had two clinical symptoms, kwashiorkor and marasmus. So we read about the differences between two, how kwashiorkor is different to marasmus, but both of them are related to protein energy, deficiency in case of children. Okay, and then we came on to the vitamin A deficiency. जिसका spectrum is related to different stages which are related to your eye cycle. Okay, so you start with night blindness, move on to bitot, then xerosis of conjunctiva, cornea, corneal ulcer, and finally there can be complete destruction of eye, which is known as keratomalacia. And then we learned about the national program which we have, in which you provide vitamin A supplement from the age of 6 months usually up till the age of 5 years. ठीक है, पर वो हर 6 महीने में होता है. हर 6 महीने में you need to give the dose to the child, and this act as a preventive strategy also. Okay, now we are left with anemia and one more thing that I'll be continuing in tomorrow's class. Okay, so any doubts, anything, the house is open. You can please ask or discuss whatever you need to add on. Otherwise, from my side, I will stop here and we will discuss the other parts tomorrow. Ma'am, what is Thank you. the name of that program? Do we have any name of this program? Vitamin A prophylaxis program. वो Okay. आपको नेट पे भी मिल जाएगा. ठीक है. Okay. Okay. Anything else, class? Clear to everyone? Okay, then I'll see you Yes. tomorrow and we will continue. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, and today there is some technical issue also, so let me start tomorrow only. Okay. Okay. Thank you. Okay, bye bye everyone. Take care. I'll see you tomorrow. Thank you.